Yesterday we started it, and we discussed uh, some topics from this. Like we have already discussed. um about alpha, beta, gamma radiations, then decay of neutron, then half-life. We were at half-life, so I will be starting from the half-life again, and then we will have to cover everything from this topic today. Okay, so moving on to half-life, I told you something about it, that it is the time taken by half of unstable nuclei to decay, and then we were discussing the decay graph method. Okay, this is one more thing related to this graph, which is shown over there. You can see that along y-axis, if I just erase everything from here to make it visible for you. So let's say if you just concentrate at the graph. So along the y-axis is the mass of the remaining unstable nuclei. Okay, so actually at time 0, 100 gram or milligram, whatever the unit of mass is, it is over there. And then as time goes on, the remaining unstable mass exponentially decreases. This is exponential. Remember, whenever the line is curved, it is called exponential curve. And along y-axis, I told you we can plot a number of unstable nuclei, activity rate, or mass. About activity rate, I will describe later in today's lecture what is activity rate. Okay, so what we do is we take at least 2 half-lives or 3 half-lives, and then we measure their average. So of course, the first half-life at 100 time is 0. Then you locate 50. So where is 50? So 50 is, let's say, here. So at 50, the time is first half-life. Then half of 50 is 25. You locate that, you trace that on the curve, and then that would be the second half-life. The time between first and second is the second half-life, and in the similar way, half of 25 is 12.5. So you'll just trace 12.5 over there, and you get your third half-life. Okay. So after one half-life in the previous graph, the remaining mass was 50 gram. That is half of original mass. After 2 half-lives, the mass of remaining mass is 0.5 into 0.5 into 100, like 0.5 square into 100. So that is 25. And after 3 half-lives, the remaining unstable mass is 0.5 into 0.5 into 0.5, like 3 times. So you do 0.5 cube into 100, which is 12.5 gram. So we can say that by looking at this trend, we can evaluate a method to look for the formula of the half-life, like the equation for half-life. So as it is 0.5 into 100, 0.5 is what it is. It is, let's say, half. It is half. Okay, so here is power 1. And then this is the first half-life. After second half-life, it is 0.5 into 0.5. So that is the 2. We can say it is 0.5 power 2. And then after third half-life, you do 0.5 into 0.5 into 0.5 again, and into the original number of original mass or original number of nuclei. So this is 0.5 power 3. It means that we can say that the remaining mass, or remaining anything, it can be mass, nucleon number, whatever, is equal to 0.5 times n into original mass. So there are 2 axes, so just I'm removing one of them. So this is 0.5 power n into x naught. What is x and x naught? X and x naught can be mass or number of nucleons or activity rate. So this x can be anything. And this x naught, you know x naught is anything at the start. So over here, let's say if we look in the graph below, 1000, what is 1000? Number of dice remaining. Dice mean, you can say number of, just remove dice, number of atoms or nucleons remaining. So this 1000 is what this is n naught, because it is at time 0. And then whatever later time you will get the value of n, that value of number of remaining atoms, that will be the value of n or x. Okay, so this is one formula for this. And we can see here 1000 and half of 1000 is 500. So you just draw a dead straight line, and then you look over there. So it means this is the first half-life, which is 3.5. And then for the second half-life, you have to go to 500 to 250. So just go at 250, and you will see that you will end up at 7. So your second half-life is again 3.5. So in this way, you get the half-life of the radioactive substances. Okay, so now everyone, you have to try this question yourself. This is the question from the past paper. And what they're saying is, they're saying that this is promethium 147, 147 over 61. 147 is nucleon number, 61 is the proton number, is a radioactive nuclide that emits beta negative particles. Okay, figure shows the variation of time of decay of promethium source with the time. So this is activity. Activity is in gigabecquerel. So what is activity? Let me tell you over here. Activity is number of radioactive decays per unit time. It's very simple. Per unit time. That is called activity rate. You can write its definition. Activity or activity rate is same thing. Activity rate, refers to a process. And what is the process? The process is radioactivity. So we say that it is the number of radioactive decays per unit time. कि भाई unit time में कितने decays हो रहे हैं, कितने nucleus अपनी energy release कर रहे हैं और वो stable हो रहे हैं. And then if we look for its formula, the activity rate is number of decays delta n over time. So its unit is per second, and as radioactivity was discovered by Henry Becquerel, I told you the other day, that's why its unit is called becquerel. So we learned two things
things, activity or activity rate is same, which is number of decays per unit time, and its formula is delta n by delta t. Delta n is the number of decays, delta t is the time, so it is 1 over second per second, and per second is called becquerel. That's why it is written over there, becquerel, and this G, this is giga. This is giga becquerel. Okay, so when you look at this, you can see that at time 0, what is the activity? Okay, so let me just zoom in for you so that you can look on it carefully. Okay, here we are. So just look at this reading. What is this reading? So 7.2, 7.4, 7.6. So this is 7.6 giga becquerel at time 0, 7.6. Okay, and now what you do, 7.6, half of 7.6. So it means your original activity is 7.6. This is at time 0. And after the first half-life, how much it should be? Can anyone tell me? What should be the value of this activity after first half-life? Come on. Come on, anyone? 3.8. Yes, half of that. So it is 3.8. So look at 3.8. Where is 3.8? So 3.8 is somewhere here. So it is over here. And then you trace this. So this comes here. Okay. Yeah, I hope it is right. So yeah, it is right. So it is 2.5, 2.6. So this time is 2.6 years. So this is your first half-life, but we will, as this is for 3 marks or 2 maybe, so we will find number of half-life, at least 2 of them. So this is first one is 2.6. Second is half of 3.8 is how much? 1.9. This will be happening after second half-life. So what we'll be doing is half 1.9. So just look at 1.9. 1.9 is somewhere near 2. So somewhere near 2 means that you are here and then you are here. So this is 5.2. So this is exact 5.2. So the second half-life is again 2.6 because the first half-life is from here to here. This is your first half-life. And the second half-life is from this point to this point, which is exactly 2.6 as well. So that's why when you take the average, so you will say that the half-life is 2.6 years. Okay, moving forward to next thing, which we are already done, but I just want to go through it again quickly. Inhalation. Inhalation is the process in which a particle and its corresponding antiparticle combine together to form energy, and that energy is radiated in the form of 2 gamma rays. Okay, so particle and antiparticle, they have same mass, but they have opposite charge. And when they combine together, they form photons, and these are usually called gamma ray photons. And these gamma ray photons move in opposite direction. Why? Because at the start, particle and antiparticle are moving in opposite direction. So in order to keep the momentum conserved, the photons have to move in opposite direction. And one important thing for which I'm telling you this again is the minimum energy of each photon produced. Like each photon, what is their minimum energy? So that is equal to HF minimum. HF. This is from Planck. This is from a photon. The energy of this first photon is hf naught, and energy of this second photon is hf naught as well. But if we want to calculate this energy, how we will be doing that? So we will be using this formula, right? Why? Because there are 2 particles, so both of their energy is being used, and that is converted into energy of the 2 photons. So if for inhalation, you will be using this formula for the total, and the minimum energy for 1 photon will be hf minimum equals E naught. What happened in pair production? In pair production, only 1 photon is used. This is different than inhalation. Only 1 photon interacts with something. It has to interact with something. Something can be a nucleus. Let's say the photon is interacting with nucleus, and then the photon's energy is converting into a particle and antiparticle. So photon create a particle and corresponding antiparticle and vanishes in the process. For a particle and antiparticle, each of rest mass E naught, we can calculate the minimum energy and minimum frequency that photon must have in order to produce a particle-antiparticle pair. Well, for this, the photon should be having a minimum energy of 2 E naught. HF minimum is equal to 2 E naught. Why? Because 1 photon is going to produce 2 particles. That's why the minimum energy of photon should be twice the energy of each particle. So that's why we write HF minimum is the energy of 1 photon, and 2 E naught is what? E naught is the rest mass energy of particle and antiparticle. Why? Because 2 particles are created. That's why 2 E naught over there. You can see here, it was 2 HF minimum is 2 E naught, and in the process, you can simply cancel away these 2 on each side. So you left with this expression. But this is an inhalation. But in pair production, you have to assign a 2 over there. That's the only difference between inhalation and pair production. And only to describe this difference, I'm telling you this thing again. Okay, let's say, for example, an electron has a rest energy of this. What is rest energy? It is the energy equivalent to the rest mass of the electron. So we say this is energy equivalent to rest mass of electron.
So 0.511 mega electron volt, and I already told you how to convert energy between mega electron volt and joule or vice versa. So for that we have relation 1 mega electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 13 joule, or 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So these are the relations that you need to use. Okay, so well, over here, as you know, this is the pair production. So it means that the photon is coming and it is producing electron and positron. So the minimum energy of photon should be twice the energy of electron. Why? Because it is going to produce 2 electrons, both of them, like 1 electron and 1 positron. So both will have same mass, so that's why they will have same rest mass energy. So that's why the minimum energy of photon should be 2 into rest mass energy of the electron, which is this, and then you, using this relation, you convert that into this joule. And furthermore, they can ask you one more thing related to it, like the extra question. It can be find wavelength or frequency of radiation of photon. Like the photon must be part of some wave, so find the wavelength or frequency of that. So you know that for that we use E is equal to HF, or we can use E is equal to Hc over lambda, right? And for E, we have the energy which is given over there. Like this is the energy of the photon. So can you calculate that, everyone? Just tell me about the value of the wavelength and the frequency of the radiation for which the photon was part of. Hurry up, do the calculation. H is Planck's constant. Its value is fixed, which will be given. It is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. And C is the speed of light, which is 3 into 10 to the power 8. So सब लोग ये कैलकुलेट करें और मुझे बताएं आंसर, या चैट बॉक्स में सब लोग आंसर लिखें. बताना नहीं, आंसर चैट बॉक्स में लिखना है. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का. हरी अप एवरीवन. हरी अप शाबाश. इसको बेटा कैलकुलेट करें. कैलकुलेट करके मुझे बताएं. उसमें चैट बॉक्स में लिखें आंसर. कैलकुलेटर उठाओ बेटा, सब लोग आंसर लिखोगे, शाबाश. ये आपकी अटेंडेंस मैं समझूंगा जो लोग आंसर लिख रहे हैं. सर चैट काम नहीं कर रहा. क्या कर रहे हैं? सर चैट काम नहीं कर रहा सर. अच्छा, चैट काम नहीं कर रहा. अच्छा, राइट. ठीक है, फिर ग्रुप में डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो. जल्दी बेटा, जल्दी. ओके बेटा. बेटा अलग मैसेज ना भेजा करो प्लीज, ग्रुप में भेजा करो अलग, फिर वो इतने मैसेजेस हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती. ओके बेटा, ठीक है. राइट. फ्रीक्वेंसी सही है. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा. द नेक्स्ट थिंग इज इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर गैमा रेडिएशन. ये थोड़ी सी, दिस इज रिलेटिवली अ न्यू थिंग फॉर यू, लेकिन इट इज वेरी इजी. अच्छा बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कि ये लॉ वैसे एवरी रेडिएशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है. साउंड के ऊपर भी होता है. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक साउंड सोर्स है, एक लाउड स्पीकर है,
और एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, वन पर्सन इज हियर एंड नेक्स्ट पर्सन इज हियर एंड द लास्ट पर्सन इज हियर. सो ऑफ कोर्स व्हेन द साउंड विल बी कमिंग फ्रॉम हियर, और साउंड आगे आ रही होगी तो साउंड स्प्रेड हो रही होगी. ठीक है, एज द वेव ट्रेवल्स इट स्प्रेड्स. कैसे? यहाँ से यूं स्प्रेड हो रही है इस तरह, ऐसे. तो जो फर्स्ट पर्सन है ऑफ कोर्स वो ज्यादा साउंड सुन रहा होगा, लेकिन जब ये साउंड स्प्रेड हो रही होगी तो सेकंड पर्सन जो है वो कम सुन रहा होगा. इसी तरह जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन भी कम सुनेगा, क्योंकि जब उस तक साउंड पहुंचेगी तो वो काफी स्प्रेड हो चुकी होगी, तो थर्ड पर्सन तक कम आएगी और फोर्थ पर्सन तक इसी तरह और कम आएगी. ठीक है, क्योंकि उस तक आते आते साउंड और ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है. तो बेटा बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ वेव की वजह से क्या होता है कि वेव की इंटेंसिटी हर पर्सन के पास डिफरेंट होती है, कम होती है. जैसे यहाँ I1 है इंटेंसिटी, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, यहाँ I4 है, यहाँ I5 है. I इज इंटेंसिटी, सिंपल. इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ. जिस तरह साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी? साउंड का वॉल्यूम, आवाज कितनी ऊंची आ रही है. इसी तरह लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? द ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी इंटेंस ब्राइट लाइट अगर आपके पास आ रही है तो आप कहेंगे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है. जैसा आज बाहर हम कहते हैं सनी डे है तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब लाइट हम तक ज्यादा आ रही है. लेकिन अगर क्लाउडी डे होता तो फिर साउंड की लाइट की इंटेंसिटी कम होती है हम तक. तो ये इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे अभी कि भाई ये जो इंटेंसिटी होती है, खासकर गैमा रेज की इंटेंसिटी, क्यों अल्फा बीटा की क्यों नहीं देखी? गैमा की इस वजह से देख रहे हैं कि अल्फा बीटा तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. अल्फा तो हार्डली 2 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इन एयर होता है. ठीक है, और बीटा भी फ्यू मीटर्स तक होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ. लेकिन जो गैमा होता है ना उसकी इनफाइनाइट रेंज होती है, इनफाइनाइट रेंज इन एयर. ठीक है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि भाई गैमा का जरा बताओ हमें कि जूं जूं गैमा रेडिएशन अपने सोर्स से आगे जाती हैं तो उनकी इंटेंसिटी कैसे कम होती है. अच्छा, सेम यही चीज सन के साथ भी होती है कि जब सन एक एनर्जी इमिट कर रहा होता है तो सन तो एनर्जी हर तरफ इमिट कर रहा है, और सन की जो एनर्जी होती है वो ऐसे एक स्फीयर, एक सर्कल की फॉर्म में ऐसे चल रही होती है, सन के चारों तरफ जा रही होती है, जिससे क्या होता है कि सन की इंटेंसिटी जूं जूं सन से दूर जाती है रेडिएशन, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है. ओके, सो अगर मैं पहले आपको लेट्स से बताऊं इसका इंटेंसिटी का, तो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो होती क्या है? दिस इज द एनर्जी पर सेकंड पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया. एनर्जी पर सेकंड पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, या इंटेंसिटी को हम ये भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज एनर्जी ट्रांसफरिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ये इसकी इक्वेशन है और इसी से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. इसको क्या कहते हैं? इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं. ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, राइट? अच्छा, अब इंटेंसिटी जो है इसकी यूनिट क्या होगी? अब बल्कि एक और भी इसका फॉर्मूला हो सकता है. ये जो एनर्जी ओवर टाइम है ना, एनर्जी ओवर टाइम पावर के इक्वल होता है. तो वी कैन आल्सो से इंटेंसिटी इज पावर ओवर एरिया, power over area. So power transferred by a wave per unit area is called energy, is called intensity of radiation. अच्छा बेटा, अब एक चीज जो हमने देखनी है कि इंटेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, जो आगे जाएंगे तो डिक्रीज होगी. तो कैसे डिक्रीज होगी? फॉर अ पॉइंट सोर्स दैट इमिट्स n gamma photon per second. n का मतलब है मतलब नंबर ऑफ इनफिनिट एंड gamma ray photons. तो n gamma ray photons हैं, ईच सेकंड वो इमिट कर रहा है. ईच ऑफ एनर्जी hf, हर एक एनर्जी hf है. द रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स इज nhf. मतलब ये कि अगर एक फोटॉन जो है, वन फोटॉन, लेट मी टेल यू दिस ओवर हियर, कि लेट्स से ये यहाँ पे हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सोर्स है जो हमने लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, लेड बॉक्स में इसलिए रखा है कि बस वो एक तरफ ही सारे फोटॉन्स जाएं, इधर उधर ना जाएं. तो लेट्स से यहाँ से फोटॉन्स निकल रहे हैं बहुत सारे. दीज आर कॉल्ड गैमा रे फोटॉन्स. अच्छा, अब वो एक की कह रहे हैं कि भाई एक फोटॉन जो है ना उसकी एनर्जी है hf. तो अगर n फोटॉन्स होंगे तो उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? nhf. एंड यू नो f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जिसके अंदर गैमा रेज हैं. और इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं n और h c ओवर लैम्डा, क्योंकि आपको पता है बेटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एच एफ, एंड हमने कहा था कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है. C का मतलब वेव स्पीड V, रेडिएशन के लिए C लेते हैं. तो यहाँ से हम इसको C बाय लैम्डा करके F कर सकते हैं, और फिर हम F की जगह इसकी वैल्यू ये डालें तो हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. इसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है जो कि 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकंड होती है. और C जो है वो स्पीड ऑफ रेडिएशन या स्पीड ऑफ लाइट, ये भी फिक्स है. तो ये दो चीज़ें बेटा बिल्कुल फिक्स हैं. इसमें सिर्फ लैम्डा जो है उस वेव की वेवलेंथ होती है. ओके, सो अब उसने पहले बताया कि अच्छा भाई ये उसकी एनर्जी NHF नॉट NHF, और एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स ऑल द फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सोर्स पास थ्रू अ टोटल एरिया 4πr², द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r. ये कैसे? ये आप यहाँ से देखो, लेट्स से कि ये एक सोर्स है गैमा रे सोर्स, ये, और ये गैमा रे सोर्स है. इसमें से गैमा रेज निकल रही हैं, तो जाहिर है गैमा रेज हर तरफ निकल रही हैं, कोई एक तरफ थोड़ी जा रही हैं, ये हर तरफ जा रही हैं. और जब गैमा रे, ये उसका फ्रंट व्यू है कि देखो यहाँ से गैमा रे एवरी डायरेक्शन में जा रही हैं. तो ये जो गैमा रेज एवरी डायरेक्शन में जाती हैं, इनमें से कुछ हिस्सा डिटेक्टर की तरफ जाता है. ये GM ट्यूब, जीजर मुलर ट्यूब, ये एक रेडियो एक्टिव डिटेक्टर है जो रेडिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करता है. सो वी से कि ये जो चीज़ है, दिस इज अ डिटेक्टर एंड इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन, मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन, कि भाई कितनी रेडिएशन है यहाँ पे. ठीक है, जीजर मुलर ट्यूब, GM ट्यूब शायद आपने पढ़ा भी ओ लेवल्स में. अच्छा, तो अब देखो इसका GM ट्यूब का डिस्टेंस जो है वो D है.
ठीक है, इस सोर्स से, और डी नॉट जो है वो अंदर उस सोर्स से लेके बाहर उस जो चैम्बर है वहां तक का डिस्टेंस डी नॉट है, और फिर चैम्बर से लेके जीएम ट्यूब तक का डिस्टेंस डी है। तो जब बेटा ये गामा रेज इस तक पहुंच रही हैं तो वो स्प्रेड हो रही है। देखो अब ये तो उधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये तो डिटेक्टर की तरफ नहीं जा रही है, हालांकि ये सोर्स तो इमिट कर रहे हैं, तो ये इधर नहीं जा रही डिटेक्टर की तरफ, खाली ये दो रेडिएशन ये वाली जा रही हैं। तो ट्यूब जब उसको मेजर करेगा तो वो बताएगा कि भाई कितनी स्ट्रेंथ है। तो जो भी रेडिएशन या एनर्जी इमिट होती है हमेशा याद रखना वो सर्कल्स की फॉर्म में। जिस तरह अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड अभी माइक की तरफ जो जा रही है वो सर्कल्स की फॉर्म में जा रही है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी साउंड में क्या फर्क फील होगा। अभी अभी आप गौर से मेरी आवाज सुननी है, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरी आवाज सुनो, और अब आपने मुझे बताना है कि जो मेरी साउंड है उसमें कोई आपको फर्क फील हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको मेरी साउंड की इंटेंसिटी में कोई फर्क फील हो रहा है? अभी इस टाइम यस सर। इंटेंसिटी कैसी है और इस टाइम इंटेंसिटी कैसी है? सर पहले आपकी इंटेंसिटी कम है और अभी आपकी ज़्यादा है इंटेंसिटी। हाँ जी, मतलब अभी ज्यादा है, ये देखो अभी ज्यादा है और अभी कम होगी, ठीक है? ठीक है ना? यस तो ये कॉमन सेंस है, क्यों? क्योंकि मैं माइक को अपने से दूर लेके जा रहा था। पहले मैंने माइक, अभी जैसे मैंने अपना माइक बिल्कुल लिप्स के पास रखा हुआ है, फिर मैं इसको दूर लेके चला गया, तो क्या हुआ कि मेरी साउंड की इंटेंसिटी कम हो गई, क्योंकि साउंड भी सर्कुलर फॉर्म में जाती है ना। एवरी रेडिएशन ट्रैवल इन सर्कुलर फॉर्म। आप ये जो रूम के अंदर लाइट लगी हुई है ये भी सर्कुलर, इसके हर तरफ लाइट जाती है, लेकिन एक साइड पे वॉल होती है, इसलिए वॉल की तरफ तो जा नहीं सकती, तो सारे रूम में आ जाती है। तो ये रेडिएशन का एक नेचुरल फीचर होता है कि वो सर्कल्स में, सफियर में वो ट्रैवल करती हैं। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने फॉर्मूला देखना है वो ये है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर जो है वो कितना है, ठीक है, जो आर यहाँ पे मतलब ये डी के बराबर होगा। सो रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड जो कि एनएचएफ है, दिस इज द फॉर्मूला, रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड, और यू कैन से एनर्जी आर, यू कैन से इंटेंसिटी, इसकी जगह आप इंटेंसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सो टोटल एनर्जी जो सोर्स पे प्रोड्यूस हो रही थी वो कितनी थी? टोटल एनर्जी प्रोड्यूस, ये मैं अगली स्लाइड पे दोबारा लिख देता हूँ। टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय सोर्स इज एनएचएफ नॉट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ दैट स्फीयर। सो टोटल एरिया ऑफ दैट स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ये जो आर है ना, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मतलब कि आप मतलब लेट्स से सोर्स से लेके ट्यूब तक का डिस्टेंस जो है वो ये आर होगा। अच्छा, अब इसमें एन एच एफ और 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, एन एच एफ 4 पाई, एन भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट, एफ भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट। तो हम एन एच एफ ओवर 4 पाई की जगह कांस्टेंट के लिख देते हैं, और नीचे आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाता है, तो ये आ जाता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब क्योंकि के कांस्टेंट है तो ये इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दस आई वेरीज विद इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। अच्छा, इसको मैं आपको एक और तरीके से यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले इंटेंसिटी हमने लिखनी है एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम या पावर ओवर टाइम, और इसकी यूनिट होती है वॉट पर सेकंड स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमने ये लिखी कि इंटेंसिटी रेडिएशन की कैसे हम निकालते हैं, टोटल एनर्जी, टी टोटल एनर्जी ओवर एरिया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी को आगे लेके चलें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास बनता है एन एच एफ ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है, लेट्स से अगर ये एक सोर्स है और यहाँ पे डिटेक्टर है, ये जिसने रेडिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, जीएम ट्यूब, मतलब जीएम ट्यूब यहाँ पे, तो बेटा सोर्स से लेके जीएम ट्यूब तक का जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम आर लिखेंगे। ये आर है, ये जो ऊपर वाला आर लिखा हुआ है, दैट्स इट। और एनएचएफ क्या है, जो यहाँ पे टोटल एनर्जी ये सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एनएचएफ नॉट, एन जो है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सम टाइम टोटल एनर्जी डायरेक्ट बता देगा, सम टाइम आपको जूल में बताएगा, सम टाइम आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएगा, सम टाइम आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताएगा, और फ्रीक्वेंसी बताएगा, आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस डिटेक्टर पे जो स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी मेजर करनी है तो बस आप उसका डिस्टेंस इस फार्मूला में लगा देंगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट थिंग, एन एच एफ ओवर 4 पाई ये कांस्टेंट है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, आप डिटेक्टर को दूर ले जाओ, एन एच एफ ओवर 4 पाई तो सेम रहेगा, दैट्स व्हाई हम कहेंगे आई इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर आर स्क्वायर, और फिर यहां से हम लिखेंगे कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड फेमस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी। तो हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एनी रेडिएशन, intensity of any radiation is inversely proportional to square of distance between source कौन सा, source of radiation, and the detector or any point. Okay, तो ये है बेटा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो आपने यूज करनी है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें रेशो यूज होगी आई रेशो आर स्क्वायर वाली, आई रेशो आर स्क्वायर। और जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो फिर हम उनको लीनियर मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर हम लीनियर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या कि भाई एक डिस्टेंस r1 था, उस पर इंटेंसिटी i1 थी, और अगर डिस्टेंस r2 हो गया तो उस पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप लीनियर मल्टीप्लाई करोगे। लीनियर मल्टीप्लाई क्यों लीनियर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा i1
I1 into R1 square equal to X into R2 square, और R2 square को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो आपके पास वहां से X आ जाएगा. तो that's how you use inverse square law. Is this thing clear बेटा? In case of any doubt you can ask. सर ये लोग फिर से पास समझा सकते हैं, ये जो अपनी बात की डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्रॉस मतलब. हाँ जी, मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा. देखो इसमें होता ही है ना कि अगर वैसे यूजुअली हम रेशो यूज करते हैं. रेशो एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली रेशो. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जिस तरह आप मैं एग्जांपल आपको दूं तो ओहम्स लॉ की एग्जांपल देता हूं. ओहम्स लॉ आपको पता है, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है. ठीक है, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है तो V प्रोपोर्शनल टू R होता है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि देखो अगर हमारे पास लेट्स से टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है सर्किट की, और टोटल बैटरी के जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है. तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा अगर एक रेजिस्टर है 20 ओम का, तो बताओ उसके क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे. तो हम कहेंगे अच्छा ये डायरेक्ट रेशियो यूज करो. हम कहेंगे भाई अगर टोटल वोल्टेज 9 है और टोटल रेजिस्टेंस 100 है, तो अगर रेजिस्टेंस 20 ओम हो तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे. ऐसे ही है ना, ये रेशियो इस तरह होती है. तो इस रेशियो में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. और आप इसको यूं करोगे कि V क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 20. तो फिर आप यहाँ से निकाल लोगे 180 ओवर 100. ठीक है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा. तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 1.8 आएगा. 1.8 वोल्ट. तो आप कहोगे भाई 1.8 वोल्ट जो है वो इसको मिल रहे हैं. ठीक है, अच्छा ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स सेकंड इज इनवर्स प्रोपोर्शन. अब व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन जो अभी हमने किया, मैं उसी की एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है. ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे एक सोर्स है और एक पॉइंट यहाँ पर है 1 और एक पॉइंट है 2. अब जो बेटा 1 पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस है इससे 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी मेजर हुई वो थी फॉर एग्जांपल 0.5. फिर इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सब लोग गौर से देखो, थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन इसको समझना है आपने. तो ये जो सोर्स है, सोर्स से पॉइंट 1 का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और वहां इंटेंसिटी 0.5 है. फिर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर. तो आपने बताना है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, और ये इंटेंसिटी आपने इन टर्म्स ऑफ, बल्कि इन टर्म्स ऑफ नहीं, बस आपने इंटेंसिटी बतानी है कि कितनी है. ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास इनवर्स है और हमें पॉइंट 1 का पता है, हमें एक पॉइंट का पता है कि भाई वहां पे क्या है, उसका हमें डिस्टेंस भी पता है और उसकी इंटेंसिटी भी पता है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से ही ना इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और यहीं पे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला तो आप समझ गए ना. तो अब आई कैन सॉल्व इट हियर. इस विंडो में मैं इसको सॉल्व करता हूँ. तो देखो मुझे पता है कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है. तो मैं कहूँगा यार जो पॉइंट 1 है वहां पर इंटेंसिटी कितनी है 0.5, और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर. तो मुझे 10 का स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी R स्क्वायर है, इसलिए मुझे ये स्क्वायर यहाँ लेना पड़ेगा. अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर डिस्टेंस कितना है सोर्स से. आपने सोर्स से डिस्टेंस देखना है, सोर्स से. तो आप कहोगे भाई कि सोर्स से डिस्टेंस जो है वो कितना है 40 प्लस 10 50. तो हम कहेंगे भाई वहां पे डिस्टेंस है 50. तो अब हम कहेंगे कि बताओ उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है. तो मैं उसको x कह दूंगा कि यार मुझे नहीं पता कितनी है, इसको x कह देते हैं या फिर I2 कह देते हैं, एक ही बात है, आपने I2 फाइंड करनी है. अब आप क्या करेंगे, अब आप चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आप लीनियर मल्टीप्लाई करते हैं. लीनियर मल्टीप्लाई, तो आप इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो जब आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको सोल्यूशन को यहाँ ऊपर ले जाता हूँ इस विंडो में, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है इक्वल टू I2 इंटू 50 का स्क्वायर 2500 होता है. और नेक्स्ट स्टेप में मैं 2500 इधर ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा 50 ओवर 2500 इक्वल I2. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जो भी आंसर आ रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर निकाल लो आप. 5 ओवर 250, तो मेरा ख्याल है 0.02 आएगा शायद. हाँ, शायद 0.02 आए या 0.03 आए. तो ये 0.002 आए, तो ये दिस इज द इंटेंसिटी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0.02 रह जाएगी. ठीक है बेटा, समझ आई इस बात की? नहीं आई तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ या कुछ और एग्जांपल देता हूँ. बट आई होप यू गेट माय पॉइंट. अच्छा बेटा, क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा. ठीक है, एक बार फिर समझा दूं. ओके, एक बार फिर मैं क्वेश्चन में समझाता हूं बेटा. अभी होल्ड ऑन. देखो आप इसमें से फातिमा, देखो बेटा, आप कुछ देखो इसमें से क्या आपको समझ नहीं आया, आपने ये देखना है. सिंपल यार, दो बातें थी. हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है. अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन जिसमें चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, उसमें जब आप रेशियो बनाते हो तो आपने लीनियर मल्टीप्लाई करना है. कैसे मल्टीप्लाई करना है? लीनियर. शायद दुआ बेटा बताओ कि आप रेशियो वगैरह यूज करती रही हो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस किए आपने जिसमें रेशियो बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करती रही हो? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी. नहीं सर. नहीं किए. नहीं सर. दैट्स वाई ना, वो जिन लोगों ने ये किए हुए हैं नॉर्मली रेशियो से वो इजी होता है, लेकिन मैं फिर दोबारा भी समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है. राइट, क्योंकि अभी लेकिन मसला ये है कि अभी आपका इंडिविजुअल मसला है ना, तो फिर मैं आपको इंडिविजुअली समझाऊंगा. अच्छा, अभी हम फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर. कोई बेटा कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा. ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी एक बहुत सिंपल सी टर्म है. इसमें होता क्या है कि एक लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. लेट्स से कि सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक एटम है और इसमें ये न्यूक्लियस है और इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटॉन्स हैं. ठीक है,
भरा पड़ा है ये प्रोटॉन से, लाइक हम कहेंगे प्रोटॉन इज वे ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। अच्छा बेटा, अब इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो इनर मोस्ट शेल है, जो सबसे क्लोज है, इसको हम इनर मोस्ट शेल कहते हैं, ये वाला। अब जब प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। तो जो इनर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर चले जाएंगे, तो जो प्रोटॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ही बेटा वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + 0 1 और 1 - 1 0, तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा थे और उन्होंने इनर मोस्ट शेल जो सबसे करीब शेल है उनके इलेक्ट्रॉन्स को कहा कि भाई आप इधर आ जाओ, उनको अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट करके वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए। जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए तो इसके सर साथ जी एक जी बेटा, सर जी, तो मीटिंग लीव करना क्यों अर्जेंट है इसलिए? क्यों, सर जी क्या? मतलब कि अच्छा, कोई अपनी आपको पर्सनल प्राइवेट रीजन है? ये सर, अच्छा ठीक है, पर्सनल रीजन की वजह से जाना चाहिए, यू मेरे को कैन पता है सर, आजकल सिर्फ ये मोबाइल डेटा मिल रहा है। ओके ठीक है बेटा, यू कैन लीव, ये फिर इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, सही है। ठीक है सर, लेकिन बहुत बाकी ऐसे शुक्रिया। कोई ठीक है बेटा, आप जाओ मास, लेकिन बाकी कोई बगैर बताए जाएगा तो बेटा मैंने उसकी अटेंडेंस नहीं लगानी। 2 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है बेटा, सही है। जो लोग एंड तक होंगे मैंने बस अटेंडेंस उन्हीं की लगानी है, दैट्स इट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैंने आपको ये बताया कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सम प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाइड कैन कैप्चर inner shell electron. This causes the proton in the nucleus to change into neutron with the emission of electron neutrino at the same time. So ये बेटा ये वो न्यूक्लियस है, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और ये बन गया Az-1, मतलब एक प्रोटॉन कम हो गया और साथ इसने न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो इमिट किया है। द इनर शेल we can see is filled by the outer shell electron as a result causing an X-ray photon to be emitted by the atom. अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जो इनर मोस्ट शेल है वो तो खाली हो गया ना, जब वो खाली हो गया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो अंदर आ गए, तो अब वहां से जो क्या होगा कि जो बाहर से जो हैं बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए आएंगे। जो ही वो इधर आएंगे तो यहाँ से एक्स रेज निकलना शुरू हो जाएंगी, एक्स रेज, एक्स रेज। तो इस तरह एक्स रेज जो है वो एलिमेंट्स के अंदर से इमिट होती हैं। कैसे? कि जिस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हो वो अपने इनर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैप्चर करता है, वो जगह खाली हो जाती है, जाहिर है वो वेकेंट हो जाती है। जब वो जगह खाली हो जाती है तो जो ऊपर वाले शेल से, हायर शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हायर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो सेंस करते हैं कि भाई हमारे नीचे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई है, तो वो ऊपर से नीचे आते हैं। जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। इसकी क्या रीजन है ये भी मैं आपको बता दूं, इन डेप्थ रीजन। देखो मैं यहाँ से इस तरह करके बना रहा हूँ, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है आपका फर्स्ट शेल, और ये है आपका सेकंड शेल, और ये न्यूक्लियस है सारा, ओके, और ये है आपका लेट्स से थर्ड शेल। तो बेटा हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, ये याद रखना है, ठीक है, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है, लोएस्ट एनर्जी, और उसके बाद जूं ऊपर जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस हिसाब में यहाँ पे जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी। बेटा ये गौर से सुनना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो होता क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कैप्चर हैपेंस, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना ये नीचे न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। जब ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं तो इनकी जगह खाली हो जाती है, एम्प्टी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जगह अब खाली हो गई, एम्प्टी स्पेस। अब ये जो ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन है वो इनकी जगह फिल करने के लिए नीचे आते हैं। अब आपको पता है कि एक है एनर्जी हाई और एक में है एनर्जी लो। तो इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड लेवल में एनर्जी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब 10 - 2 जब इस तरह करके होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सरप्लस बचेगी। ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां से इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे फोटॉन। क्योंकि वो जो एक इलेक्ट्रॉन देखो पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था सेकंड शेल में, लेकिन जब उसने जंप करके इनर शेल में आया फर्स्ट में, तो फर्स्ट शेल में तो उसकी एनर्जी 2 रह जानी है, तो बाकी एनर्जी उसने क्या करना है, उसने रिलीज करनी है और वो एक्स रे फोटॉन की फॉर्म में रिलीज होगी। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो बेटा आपके पास एक ये टेबल है, लेट्स से टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ी सी स्टील बॉल पड़ी हुई है, 2 kg स्टील बॉल, ठीक है। अब इसके अंदर जाहिर है ये हाइट है, हाइट की वजह से इसके अंदर इनिशियली जीपीई है जो कितनी है, अगर मैं हाइट 1 मीटर कहूं, 1 मीटर, तो फिर ये होगा कि 2 1 2 और 10 20, तो 20 जूल इसके अंदर एनर्जी। अगर ये स्टील बॉल यहां से नीचे गिरती है इधर यहाँ पे, ठीक है, तो अभी इसके अंदर जीपी अभी भी होगी, क्योंकि जीपी के लिए हाइट जो है ना वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकालते हैं। तो लेट्स से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी हाइट जो है वो अब इसकी बहुत कम हाइट है, लाइक लेट्स से 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें थोड़ी सी जीपी, वेरी लिटिल जीपी रह जाएगी, वेरी लिटिल जीपी। तो यार ये बाकी जीपी कहाँ गई जो उसके अंदर थी 20 जूल? जब इसने इसको हिट किया है तो कौन बताएगा कि बाकी किधर गई एनर्जी? 20 में से थोड़ी सी बच गई, बिल्कुल थोड़ी सी, लाइक हो सकता है कि 0.5 जूल बची हो, बाकी 19.5 कहाँ गई? कम ऑन, विल समबडी टेल मी, बाकी एनर्जी कहाँ गई? ईसा बताओ, रानिया, हम्बल, फातिमा, राफे, बोलो यार, अब बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोशी से सुन रहे होते हो, बोल कोई भी नहीं रहा होता। सर बाकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ हाँ वेस्ट हो ठीक जाएगी। है। काइनेटिक में जब उसने हिट किया है तो ठीक है, काइनेटिक में कन्वर्ट होकर वो खत्म हो गई ना, तो आखिर में जब हिट करेगा तो उस टाइम कौन सी एनर्जी बनेगी? सर हीट और साउंड। हाँ जी, हीट और साउंड बनेगी, गुड। तो यहां से हीट और साउंड होगी। अब
बेटा हीट और साउंड बन के निकल गई बाहर, क्यों निकली? क्योंकि वो स्टील बॉल हाइट से नीचे आके गिरी थी। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ एटम में होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो जब एक न्यूक्लियस जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स थे, उसने क्या किया, प्रोटॉन ने अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लिया। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, उसकी जगह खाली हो गई, तो ऊपर वाले शेल से जब इलेक्ट्रॉन आए तो उनके तो शेल में एनर्जी का डिफरेंस होता है। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हर शेल के अंदर डिफरेंट होती है, हर शेल में एनर्जी फिक्स होती है। तो लेट्स से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 है, सेकंड में 10 है, थर्ड में लेट्स से 20 है। तो अगर सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 10 - 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने रिलीज करनी है, जैसे मेटल बॉल ने रिलीज की थी। तो ये एनर्जी गामा रे फोटॉन की फॉर्म में रिलीज होती है। आई होप दिस will make some sense to you. ये मैंने सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए इतनी एग्जांपल्स दी कि the inner shell we can see is filled by outer shell electron as a result causing an X-ray photon to be emitted by atom. So is this thing clear to all? मामून बेटा बताओ, समझ आई बात की? सोफिया आप बताओ। जिससे पूछ रहा हूँ यार वो जल्दी बताया करो। आप लोग माइक या मोबाइल या लैपटॉप के सामने ही बैठे हो तो फौरन अनम्यूट करो, फौरन बताओ। जी सोफिया। यस सर, समझ आएंगे। ओके अच्छा, उसके बाद बेटा डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोबारा यहाँ मैंने लिख दिया, वो न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, साथ बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो स्टेबल पार्टिकल है, वो डिके नहीं करता, लेकिन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन सिर्फ डिके होता है, प्रोटॉन डिके नहीं होता। वो ये ऊपर वाली जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है उसके थ्रू क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो कैप्चर करता है और फिर वो न्यूट्रॉन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसका ये क्वेश्चन है, हाँ ये बेटा इंटेंसिटी का क्वेश्चन है, तो सब लोग अपने कॉपी पेन रेडी रखें। अभी वी जस्ट कीप कंटिन्यू ओवर क्लास टिल 11 तक हम अपनी क्लास लेके चलेंगे, और इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बस इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके सो क्वेश्चन देखें बेटा, अ पॉइंट सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन इज प्लेस्ड 200 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ गीगर मुलर ट्यूब। ओके, वो कह रहा है कि एक सोर्स है, रेडिएटिव सोर्स है यहाँ पे, इससे हमने जीएम ट्यूब जो है वो 200 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर हमने दूर रखी है। ये सोर्स है रेडिएशन का। द करेक्टेड काउंट रेट वाज मेजर्ड एट 12.7 काउंट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे जो काउंट रेट मेजर हुआ, जो एक्टिविटी मेजर हुई, वो 12.7 काउंट पर सेकंड थी। ठीक है, कैलकुलेट द करेक्टेड काउंट रेट इफ द सोर्स वाज मूव्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 400। अब वो कह रहा है कि अगर ये सोर्स हम 400 ले जाएं, उससे जीयू से पीछे ले जाएं, मतलब ये पीछे ले जाएं और जो न्यू पोजीशन आए उससे मतलब डिस्टेंस सोर्स से 400 हो जाए, यहाँ से 400 जीएम ट्यूब से हो जाए। जब 400 हो जाए तो अब आपने बताना है कि यहाँ पे न्यू एक्टिविटी जो है वो क्या होगी। ओरिजिनल ए नॉट, तो न्यू एक्टिविटी क्या होगी। अब कीपिंग इन माइंड यहाँ हमें एक्टिविटी पता है कितनी है और डिस्टेंस भी पता है। तो अब हमें डिस्टेंस पता है लेकिन एक्टिविटी निकालनी है, तो इसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज हम करते हैं वो यूज करते हैं आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आई जो है वो आप यहाँ पे आप एक्टिविटी के तौर पर यूज करोगे, तो एक्टिविटी इनटू आई, ये आर स्क्वायर ऐसे होगा। तो अगर मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं तो पहले एक्टिविटी 12.7 है और डिस्टेंस कितना है 200। डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर है। अब न्यू एक्टिविटी आपने निकालनी है और डिस्टेंस 400 हो गया। और अब दुआ बेटा मैं ये कह रहा था कि जब ये आप रेशो बना लेते हैं इस तरह, और अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो, ए और आर इनवर्स प्रोपोर्शन हो, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आप लीनियर मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में लीनियर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12.7 इंटू 200 का स्क्वायर इक्वल ए नॉट इंटू 400 का स्क्वायर। तो ये ए नॉट यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इस 400 को इधर ले आओगे, इधर लाके डिवाइड करोगे तो आप आंसर निकाल लोगे। तो ए नॉट विल बी 12.7 इंटू 200 का स्क्वायर ओवर 400 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी। राइट, दुआ बेटा आप बताओ, अब दुआ है या चली गई है? ओके अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा डेंजर्स ऑफ। अब थोड़ा सा ना बस स्टोरी टेलिंग वाली चीज आ गई, मतलब आप थोड़ी कैलकुलेशन नहीं होंगी, ये सबको पता है, जस्ट जनरली गो टू करना है। डेंजर्स फोर्स, इसके रेडियोएक्टिविटी के रेडिएशंस के डेंजर्स होते हैं। तो इनका डेंजर क्या होता है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, ये इसका डेंजर साइन है। ठीक है, नीचे बना हुआ है, जहाँ पे भी ये बना होगा इसका मतलब वहाँ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को डील किया जाता है। यूजुअली हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है ये, या इंडस्ट्री वगैरह में होता है। सो आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब क्या है बेटा, कि ये इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जब किसी नॉन लिविंग चीज को ये हिट करती है तो उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं। और जब किसी लिविंग थिंग को ये हिट करेंगी तो हमारे अंदर एटम या इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं। तो जब ये हमें हिट करेंगे तो हमारे सेल मेम्ब्रेन को ये डिस्ट्रॉय करेंगे, सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे इन्फेक्शन होगा। अगर रेडिएशन हमारे सेल के अंदर चली गई तो हमारे डीएनए वगैरह को वो चेंज करेंगी, और जिससे क्या होगा कि अगर बंदे की डेथ ना भी हो तो उसका डीएनए जब चेंज होगा तो उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, उसके अंदर मल्टीपल डिजीजेस जो हैं वो जो है वो आ जाएंगी। सो आयनाइजिंग रेडिएशन इज अ हैजर्ड बिकॉज इट डैमेजेस लिविंग सेल्स सच एज रेडिएशन इंक्लूड्स एक्स-रेज, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एज वेल एज अल्फा बीटा गामा। ये सब एक्स-रे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा बीटा गामा, ये सब आयनाइजिंग रेडिएशन है। So ionizing radiation affects living cells because it can destroy
destroy cell membrane which causes cell to die. ज़ाहिर है सेल हमारे सेल तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाए तो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा बायो में कि सेल मेम्ब्रेन ही हमारे अंदर वो जो साइटोप्लाज्म और बाकी चीजें उनको कैरी करके रखती है, ठीक है, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो अगर सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो अंदर से सारी चीजें बाहर आ जाएंगी जिससे सेल डाई हो जाएगा। और इट कैन डैमेज द वाइटल मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय क्रिएटिंग फ्री रेडिकल आयंस व्हिच रिएक्ट विद वाइटल मॉलिक्यूल्स। सो नॉर्मल सेल डिवीजन इज अफेक्टेड एंड न्यूक्लियाई बिकम डैमेज्ड। Damaged DNA may cause cells to divide and grow uncontrollably, causing a tumor which may be cancerous. मतलब ये अब वो ट्यूमर या कैंसर की तरफ आपको पता जा रहे हैं कि अगर एक सेल डाई हो जाए, डैमेज हो जाए और वो इन्फेक्शन फैल जाए और वो बाकियों को भी इफेक्ट करे और बीच में एक एबनॉर्मल सेल ग्रो होना शुरू हो जाए तो कैंसर या ट्यूमर जो होता है वो बेसिकली एक एबनॉर्मल सेल होता है। अच्छा, हम रेडिएशन को मॉनिटर कैसे करते हैं? मॉनिटर करने के लिए हम बहुत जो सिंपल सी चीज़ है ना बेटा, वो एक फिल्म बैज यूज़ करते हैं। ये नीचे फिल्म बैज है, ये जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं या रेडियोएक्टिव फैसिलिटी पे काम करते हैं वो ये फिल्म बैज अपने सामने पॉकेट पे लगा के रखते हैं। Anyone using equipment that produces ionizing radiation must wear a film badge to monitor him or her exposure to ionizing radiation. ज़ाहिर है वो जो वर्कर हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने ऑल्दो लेड लाइन क्लॉथिंग और प्रोटेक्टिव मेजर किए होते हैं लेकिन फिर भी फिल्म बैज उनके पास होते हैं। ये उनको बताता है कि यहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा है या कम है, जब ज़्यादा होती है तो फौरन वहाँ से लीव कर जाते हैं। द बैज कंटेन्स अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म इन अ लाइट प्रूफ रैपर। लाइट प्रूफ का मतलब उसके अंदर लाइट नहीं जा सकती लेकिन अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन जो है वो जा सकती है या एक्सरे जा सकती हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ फिल्म आर कवर्ड बाय एब्जॉर्बर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट थिकनेस। व्हेन द फिल्म इज डेवलप्ड द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू ईच फॉर्म ऑफ रेडिएशन ionizing radiation can be estimated from blackening of the film. If the badge is overexposed and wearer is not allowed, then wearer is not allowed to keep working in that environment. तो ये बहुत सिंपल है। ये जो बैज है जिसके ऊपर 752145 नंबर लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज होता है। अगर रेडिएशन ज्यादा हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है, वो बंदा वहीं से देख लेता है कि इसका कलर चेंज हो रहा है, फिर उसमें एक रेड ऑरेंज तक अगर कलर चला जाए तो उन्हें फौरन वहां से इवैक्यूएट करना होता है। और ये होता क्यों है? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है आयनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। आयनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। ओके क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन, लेट्स से अगर ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है, दिस इज, ये हेनरी बैकरल ने ऐसे ही डिस्कवर किया था, आई टोल्ड यू द अदर डे, इफ दिस इज अ फोटोग्राफिक फिल्म, ये वाली, तो जब रेडिएशंस आएंगी यहाँ से तो इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के डॉट्स या रेज ऐसे बन जाएंगी इस तरह। जब ये पैटर्न्स बन जाएंगे तो हम कहेंगे यार ये पैटर्न्स क्यों बने हैं? बिकॉज रेडिएशंस व्हाइल हिटिंग द फोटोग्राफिक फिल्म हैज आयनाइज्ड दैट सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को केमिकली जब आयनाइज कर दिया तो इसलिए यहाँ पे different spot. So photographic film is the basic detector. This is the most basic detector to detect the radiations. Okay, उसके बाद जीजर मुलर ट्यूब है। ये एक नई ट्यूब है जो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, उसको जीजर मुलर ट्यूब कहते हैं। ये इसकी बस थोड़ी सी मुझे आपको कंस्ट्रक्शन, हल्की सी कंस्ट्रक्शन बतानी है, ठीक है। ये ऐसे होता है कि इसमें लेट्स से यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा होता है और उसके बाद यहाँ पे एक वेरी हाई वोल्टेज किलो वोल्ट वोल्टेज होता है और इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव होता है और यहाँ से फिर वायर्स जा रही होती हैं काउंटर की तरफ। तो यहाँ पे काउंटर होता है, काउंटर आपको काउंट करके बताता है कि कितनी रेडिएशन आ रही है। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या होता है? ये जो जीएम ट्यूब है इसके अंदर जो है, ये जो रेड डॉट्स में बना रहा हूँ, ये लो प्रेशर ऑर्गन गैस होती है इसके अंदर, लो प्रेशर ऑर्गन गैस। और इसके अंदर ये जो विंडो होती है, ये वाली, ये मीका विंडो होती है। मीका जो है वो वेरी थिन प्लास्टिक को कहते हैं, वेरी थिन प्लास्टिक, क्योंकि अल्फा जो है ना वो पेपर में से नहीं गुजर सकता, तो अल्फा को भी तो हमने गुजारना है मेजर करने के लिए, इसलिए इसकी जो विंडो होती है वो वेरी थिन मीका होती है, ताकि अगर कोई अल्फा वगैरह भी आ रहा है तो बीटा गैमा तो आराम से गुजर जाते हैं, वो गुजर के अंदर जाएं। अंदर जब जाएंगे तो वो गैस को आयनाइज करेंगे क्योंकि इनका आयनाइजिंग इफेक्ट होता है। जब गैस की आयनाइजेशन होगी तो उससे पॉजिटिव और नेगेटिव आइन पेयर बनेंगे गैस के, ठीक है। और जो पॉजिटिव आइन पेयर है, देखो यहाँ से ये जो ये पॉजिटिव है, ये जो बीच में स्ट्रिप है, ये पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगी हुई है, तो सारे जो नेगेटिव आइन है, सॉरी नेगेटिव आइन इसके साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो सिलेंडर की बॉडी है, ये मेटल सिलेंडर होता है, ठीक है, तो इसकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो जो सारे ऑर्गन के पॉजिटिव आइन है वो उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा? एक करंट पल्स बनेगी यहाँ से, ये करंट पल्स होगी और ये करंट पल्स रेजिस्टर की तरफ जाएगी, रेजिस्टर उसको काउंटर को देगा और काउंटर उसको काउंट करेगा और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितनी रेडिएशंस हैं, ठीक है। ये आती नहीं है वर्किंग इसकी, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट वर्सटाइल और मॉडर्न इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन के किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितनी है, अगर वो हमने मेजर करनी है तो हम ये यूज करेंगे। अगर हमें खाली ये देखना है कि रेडिएशन है या नहीं तो फोटोग्राफिक फिल्म या बैच यूज कर लेंगे, इससे सिर्फ ये पता लगेगा कि ओके रेडिएशन आर हियर। लेकिन अगर ये देखना है कि कितनी स्ट्रेंथ है, फिर हमें ये जीएम ट्यूब जो है वो मेजर करनी, यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, जो यूनिट होती है बेटा वो बैकरल होती है, बैकरल या पर सेकंड, मतलब जो रेडिएशंस हैं उनकी यूनिट बैकरल या पर सेकंड होती है। ओके, नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रेडिएशन विच इज वेरी इजी, एवरीवन नोज बैकग्राउंड रेडिएशन, ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा। बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं ऐसी इनविजिबल रेडिएशन के जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो हम कहेंगे लो आयनाइजिंग रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू नॉन विजिबल रेडियोएक्टिव सोर्सेज। अच्छा, नॉन विजिबल का मतलब है वो हमारे सामने नहीं होते। लो आयनाइजिंग का मतलब है कि डेंजरस नहीं, अभी भी आपके रूम में या जहां भी आप बैठे हो यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशंस है, ठीक है। और बैकग्राउंड रेडिएशंस की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, वो तकरीबन 10 से लेके 30 तक होती है, बैकरल तक 10 से 30। तो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेफ वैल्यू होती है, इस पर हमें कुछ नहीं होता, सेफ वैल्यू।
ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन है ये क्यों होती है? नंबर 1, बैकग्राउंड रेडिएशन अकर नेचुरली ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन वो होती है जो आउटर स्पेस से आती हैं, एंड फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इन द रॉक्स, सॉइल एंड द एयर। तो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स कुछ जमीन के अंदर होते हैं, कुछ एयर में होते हैं, ठीक है, कुछ सॉइल में होते हैं। उनकी वजह से जो रेडिएशन एयर में आ जाती है हम उसको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। सम टाइम जो इनके सोर्सेज हैं बैकग्राउंड रेडिएशन वेरीज विद लोकेशन ड्यू टू लोकल जियोलॉजिकल फीचर्स। फॉर एग्जांपल रेडॉन गैस व्हिच इज रेडियोएक्टिव कैन एक्युमुलेट इन पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज ऑफ बिल्डिंग इन सर्टेन लोकेशन। अच्छा देखो, बैकग्राउंड रेडिएशन जो है इसके जो सोर्सेज हैं ना वो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। लाइक इसके जो सोर्सेज हैं अगर मैं आपको वो बताऊं तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड रेडिएशन का जो सोर्स होता है ना, सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, तो पहला सोर्स होता है बेटा इसका कॉस्मिक रेज, मतलब जो बाहर से आती हैं रेज, एटमॉस्फेयर से बाहर से। दूसरी जो होती है वो रेडॉन गैस, रेडॉन गैस अर्थ में से बाहर निकल रही होती है, तो ये भी रेडियोएक्टिव होती है। तीसरा जो सोर्स होता है वो अंडरग्राउंड रेडियोएक्टिव सोर्सेज होता है, अंडरग्राउंड रेडियोएक्टिव सोर्सेज जो जमीन के अंदर है। बाज़ जगहों पे ये अब हर जगह नहीं होते, जिस तरह आप पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रेडियोएक्टिव सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं ज़मीन के अंदर, तो वहाँ जो ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ पे रेडिएशन की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर से रेडिएशन निकल के बाहर आ रही होती है। नंबर 4, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स क्यों होते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर एक्स रेज वगैरह यूज़ करते हैं, या उसके बाद रेडियोथेरेपी करते हैं जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, या ट्यूमर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसमें गैमा रेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी रेडिएशन कुछ बाहर आ जाती हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद बेटा हमारा जो फूड है इसके अंदर भी होते हैं प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इवन हम ह्यूमंस जो है हमारी बॉडी में से भी रेडिएशन निकल रही होती है। अच्छा, इसी तरह क्यों? क्योंकि फूड जो है, प्लांट जो है वो जमीन के अंदर होती है, रूट्स, और रूट्स में भी वो रेडिएशन नीचे से आ रही हो तो वो रूट्स में रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाती हैं और फिर ऊपर फ्रूट में आ जाती हैं, और फ्रूट के थ्रू फिर हम भी उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, तो ये इसकी कुछ है। और उसके बाद रेडियो एक्टिव लैब्स, रेडियो एक्टिव लैब्स या न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहाँ पे भी कुछ रेडिएशन। देखो न्यूक्लियर, अब कोई भी रेडिएटिव सोर्स सामने तो नहीं रखा होता, वो प्लांट के अंदर पड़ा हुआ है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी रेडिएशन सीप आउट होकर उस पावर प्लांट से बाहर एयर में आ जाती हैं, तो उसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ओके, उसके बाद इनको स्टोर कैसे करना होता है? जो रेडिएटिव सब्सटेंस है, चूंकि वो हर जगह पे होते हैं, तो उनको हमने स्टोर और सेफ हैंडलिंग कैसे, जस्ट रीड थ्रू, कुछ भी नहीं है इसमें। स्टोरेज ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल्स शुड बी इन लेड लाइन कंटेनर्स। तो सबसे पहली बात, उसको लेड लाइन कंटेनर्स में रखते हैं। क्यों लेड लाइन में क्यों रखते हैं? क्योंकि लेड के अंदर से गैमा रेज भी नहीं निकल सकती, अल्फा और बीटा तो वैसे ही नहीं निकल सकते, गैमा भी नहीं निकल सकती। ओके, नेक्स्ट थिंग, मोस्ट रेडिएक्टिव सोर्सेज प्रोड्यूस गैमा रेडिएशन एज वेल एज अल्फा और बीटा, सो द lead lining of container must be thick enough to reduce the gamma radiation from the sources in container to about the background level. In addition, the regulation required that the containers are under lock and key and that is record of the source is kept. मतलब ये कि वो जो कंटेनर होते हैं उनको लेड कंटेनर होते हैं जिनके अंदर सोर्स रखते हैं जो रेडिएक्टिव सोर्स होते हैं, ताकि उनमें से कम रेडिएशन बाहर आए। तो लेड लाइंड कंटेनर्स इज द फर्स्ट थिंग टू स्टोर द रेडिएक्टिव मटेरियल्स। सेकंड, व्हेन यूजिंग अ रेडिएक्टिव मटेरियल you have to establish the rule and regulation कि no source should be allowed to come into the contact with the skin. आपने स्किन खुद हाथ से कोई भी रेडिएक्टिव मटेरियल किसी ने नहीं उठाना, ट्वीजर से उठाते हैं या रोबोटिक आर्म से उठाते हैं। Solid sources should be transferred using the handling tools such as tongs or glove box or using robots. The handling tools ensure the material is far away from the user and practicable, so in the intensity of gamma radiation from the source at the user is as low as possible and the user is beyond the range of alpha and beta from the source. I hope आपको समझ आ गई होगी इस बात की क्यों हम हाथ से नहीं पकड़ेंगे, ताकि हम दूर हों और हमारे पास रेडिएशन ना पहुंचे। लिक्विड एंड गैस सोर्सेज, liquid and gas sources and solid in the powers solids in the powder form should be in sealed containers. This is to ensure radioactive gas cannot breathed in and radioactive liquid not splashed on the skin or तो जो रेडिएक्टिव लिक्विड या गैस या पाउडर फॉर्म में होंगे उनको आपने बिल्कुल सील रखना है और उनको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर वो आपकी स्किन पे लग गए तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। फिर रेडिएक्टिव सोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गर देन अ नेसेसरी, मतलब अब आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है तो यूजुअली जिस आप लैब में करते हैं इक्विपमेंट को 1 घंटा देखते रहते हैं, आधा घंटा देखते रहते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना। जो ही रेडिएक्टिव सोर्स सामने आएगा आपने फौरन एक्सपेरिमेंट करना है और उसको साइड पे कर देना है। द लॉन्गर अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू आयनाइजिंग रेडिएशन द ग्रेटर डोज ऑफ रेडिएशन विल बी रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट इज रेडियो आइसोटोप इन यूज। बस हम लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। जो रेडियो आइसोटोप हम यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में वो क्या क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप आपको पता है, दिस इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप का मतलब है कि ये आइसोटोपिक फॉर्म में होंगे जिसमें से कुछ तो स्टेबल होंगे और कुछ अनस्टेबल होंगे। जो अनस्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म है हम उसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहेंगे और उसको हम फिर डिफरेंट जगहों पर यूज करेंगे, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। द चॉइस ऑफ एन आइसोटोप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस डिपेंड्स ऑन इट्स हाफ लाइफ एंड ऑन द टाइप ऑफ रेडिएशन इट इमिट। तो दो चीजों पर ये डिपेंड करता है। नंबर 1 कि भाई उसकी हाफ लाइफ कितनी है, और नंबर 2 कि उसमें से कौन सी रेडिएशन इमिट हो रही है, क्या अल्फा हो रही है, बीटा हो रही है, गैमा हो रही है। तो ये दो चीजें हम this price is also dependent and on whether or not it produces a stable decay product in addition to toxicity and biochemical stability. ये कोई इशू नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब पहला इनका यूजेस देखते हैं। पहला यूज रेडियोएक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग भी इसको कहते हैं। आपको पता है जो जमीन में से चीजें निकलती हैं, जो कहते हैं डायनासोर के एग्स निकले और उनका स्केलेटन निकला और वो 5000 इयर्स बीसी में वो थे, तो इन्हें कैसे पता लगा कि वो 5000 बीसी में डायनासोर यहाँ पे थे, 5000 बीसी पुराना है? वो ऐसे कि एयर के अंदर कार्बन 14 होती है। कार्बन 14 जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, और अभी भी एयर में है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऑर्गेनिक लिविंग या नॉन लिविंग, मतलब प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम सब कार्बन 14 इनहेल कर रहे होते हैं।
तो हमारे बॉडीज के अंदर और प्लांट्स में और एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे रहते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है, वैनिश हो जाते हैं, जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वही कार्बन 14 इमिशन रेडिएशन इमिट करना शुरू हो जाती है। और कार्बन 14 जो है इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 5600 ईयर्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बॉडी ने, लेट्स से अगर किसी के बॉडी ने 20 मिलीग्राम कार्बन 14 अपने लाइफ टाइम में, अगर कोई बंदा 80 ईयर्स जिंदा रहा और उसने 20 मिलीग्राम की कार्बन 14 एब्जॉर्ब कर ली, तो उसकी डेथ के बाद 10 मिलीग्राम से उसके बॉडी या बोन्स में से या टीथ में से 20 मिलीग्राम में से 10 मिलीग्राम कार्बन 14 होने में 5600 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। 10 से 5 मिलीग्राम होने में फिर 5600 ईयर्स का टाइम लग जाएगा, और 5 से फिर 2.5 मिलीग्राम होने में फिर 5600 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। इट मींस कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 18,000 ईयर्स लगेंगे, स्टिल अभी उसके बॉडी में कार्बन 14 है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट सिंपल सी बात है, जो चीज जमीन में से निकलती है, आर्कियोलॉजिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसकी कार्बन 14 की अमाउंट देखते हैं कि कितनी इमिट हो रही है, फिर उसी जैसी चीज जमीन पे देखते हैं, कोई ट्री या कोई भी चीज देखते हैं, कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें से कितनी कार्बन 14 निकल रही है, फिर उसको कंपेयर करते हैं और हाफ लाइफ का फार्मूला यूज करके उसकी डेट निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड डेट, एस्टिमेटेड डेट, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं। सो लेट्स जस्ट रीड थ्रू इट। लिविंग प्लांट्स एंड ट्रीज कंटेन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेडिएटिव आइसोटोप ऑफ कार्बन which is formed in the atmosphere as a result of cosmic rays knocking the neutrons from the nuclei. These neutrons then collide with the nitrogen nuclei to form carbon 14. अब ये ऐसे बनता है कि जब न्यूट्रॉन नाइट्रोजन को हिट करता है तो उससे कार्बन 14 बनता है, 7 प्रोटॉन बनता है, ये कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है, जो हैवी है, नीचे आ जाती है और हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर is taken up by the living plants as a result of photosynthesis, so a small percentage of carbon content of any plant is having carbon 14. This isotope has a half-life of 55 70 years, so there is a negligible decay during the lifetime of the plant. Once a tree has died, no further carbon is taken in, so the proportion of carbon 14 in the dead tree decreases as carbon 14 nuclei decay. और वो ऐसे डिक्रीज होते हैं कि 20 मिलीग्राम से 10 होने में 5600 ईयर्स लगते हैं, फिर 10 से 5 होने में 5600 ईयर, फिर 2.5 होने में 5600 ईयर। तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीटली इमिट द कार्बन 14। तो इस तरह हमें उन चीजों की एज का पता लगता है। ओके, द लास्ट एंड फाइनल थिंग वी, जी बेटा। रात में क्लास होगी सर? बेटा रात को हाँ इंशाल्लाह यस, क्योंकि मैंने कहा था कि रिवीजन में हम हर रोज क्लास लिया करेंगे, तो बिल्कुल होगी। उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको अभी टास्क दूंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और रात को फिर उनको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स और उन जैसे और क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब हर रोज आज से क्लास होगी अराउंड यू कैन से 9 o'clock, 9 से 9:40, लेकिन होगी 40 मिनट की। ओके, तो रेडियोएक्टिव ट्रेसर क्या होते हैं, बस वी हैव 9 मिनट्स बेटा, सो जस्ट बियर विद इट। आई नो सुनना भी मुश्किल होता है, मैं तो 1 घंटे से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, शायद सुनना भी बहुत मुश्किल होता है पेशेंसली एक जगह पे बैठ के, तो बस ये आखिरी चीज है, इसको जरा देख लो और देन विल बी एंडिंग इन 8 मिनट्स इंशाल्लाह। रेडियोएक्टिव ट्रेसर इज यूज्ड टू फॉलो द पाथ ऑफ, अच्छा रेडियोएक्टिव ट्रेसर क्या होता है, चलो मैं ऐसे ही आपको पहले बताता हूँ। रेडियोएक्टिव ट्रेसर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ट्रेसर क्या होता है, ट्रेसर होता है जिस तरह आप जीपीएस लगाते हो ना, जीपीएस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसकी। लेट्स से कि आपने किसी चीज को ट्रेस करना है, ठीक है जी, ये आपकी गाड़ी है, हाँ, आपने इसके अंदर एक जीपीएस चिप लगा दी। अब आपकी गाड़ी कोई ले गया, आपको नहीं पता, कोई ले गया, और आप जी यहाँ बैठे हुए हो और आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है। अब आपका मोबाइल फोन इस जीपीएस के साथ कनेक्टेड है, गाड़ी जिधर मर्जी जाएगी, क्या होगा कि जीपीएस जो सिग्नल भेज रहा होगा, वो सिग्नल जाहिर है आपके मोबाइल फोन टावर के थ्रू डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, पहले टावर तक जाएंगे, टावर से आप तक आएंगे, और आपको पता लगता रहेगा कि यार मेरी गाड़ी किधर जा रही है, तो आप अपनी गाड़ी को ट्रेस कर सकते हो। इवन हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जीपीएस चिप्स के जरिए ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, ये ट्रेसर आपने ट्रेस किया। अब ट्रेस करने के लिए आपने क्या यूज किया, क्यों भाई बोलो, क्या चीज यूज की आपने अपनी गाड़ी को ट्रेस करने के लिए, जल्दी बोलो बेटा, कोई बंदा भी बताए मुझे, गाड़ी को ट्रेस करने के लिए क्या चीज यूज की है। ईसा आप बताओ, ईसा इजाज, मोहम्मद मूसा बताओ, ईसा खान, फातिमा अली, गाड़ी को ट्रेस करने के लिए कौन सी चीज नहीं, उस गाड़ी में कौन सी चीज रखी थी, राफी आप बता दो। हाँ, जीपीएस ट्रैकर, जीपीएस ट्रैकर, तो इसको हम ट्रेसर कहते हैं। तो जीपीएस आपने डाला, जो गाड़ी जहां भी गई उसके सिग्नल आए, आपने ट्रेस किया, आपने बता दिया लो भाई गाड़ी यहाँ पे। सेम बेटा यही चीज होती है रेडियो एक्टिव ट्रेसर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर भी यही होते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हम उसको, और यूजुअली उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, तो इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, मतलब फ्यू मिनट्स की होती है, या फ्यू आवर्स की होती है, या फ्यू डेज की होती है, दैट्स इट। लेकिन जो रेगुलर नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, लाइक फ्यू ईयर्स, उनको हम यूज नहीं करते। ओके, सो देखो रेडियोएक्टिव ट्रेसर में क्या होता है, रेडियोएक्टिव ट्रेसर यूज्ड टू फॉलो द पाथ ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू अ सिस्टम। ओके, तो टेबल 1 और नेक्स्ट पेज अभी हम आगे चलते हैं। गिव सम एग्जांपल्स। इन जनरल द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स और ट्रेसर्स शुड हैव अ हाफ लाइफ व्हिच इज स्टेबल इनफ फॉर द नेसेसरी मेजरमेंट टू बी मेड एंड शॉर्ट इनफ टू डिके क्विकली आफ्टर यूज। तो शॉर्ट हाफ लाइफ होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड, इट मस्ट बी इमिटिंग बीटा और गामा, अल्फा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्फा तो पेपर में से भी नहीं गुजर सकते, तो हम तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो बीटा या गामा रेडिएशन वाले हम ट्रेसर जो है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, अब ये देखो जरा इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेडियोएक्टिव ट्रेसर, कहां पे हम रेडियोएक्टिव ट्रेसर यूज करते हैं। पहली एप्लीकेशन देखो, डिटेक्टिंग ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स लीकेज। इमेजिन करो बहुत लंबी पाइपलाइन है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से एक ऑयल रिग है, ऑयल वेल, और यहाँ पे रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी है, अटक ऑयल रिफाइनरी जो रावलपिंडी में है, ठीक है, और यहाँ से फ्यू 100 किलोमीटर की
लाइन है, पाइपलाइन है जिसके अंदर से ऑयल आ रहा है। अब ऑयल रास्ते में कहीं पे पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, ज़ाहिर अंडर द ग्राउंड होती है, ऑयल गिरना शुरू हो जाता है, तो हमें कैसे पता लगेगा भाई एग्जैक्टली कहाँ से वो पाइपलाइन डैमेज है? उसके लिए हम ये करते हैं कि इसके अंदर ये रेडियोएक्टिव ट्रेसर डालते हैं। रेडियोएक्टिव ट्रेसर इंजेक्टेड इनटू द फ्लो, अ डिटेक्टर ऑन द सरफेस अबव द पाइपलाइन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द लीकेज। मतलब वो पाइप के अंदर यहाँ से एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट डालते हैं, पाउडर मिक्स करते हैं ऑयल में जिसमें से गामा रेज निकल रही होती हैं। ट्रेसर क्या होता है? इंजेक्टेड फ्लूइड कंटेन्स अ बीटा एमिटर और अ गामा एमिटर डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज डेप्थ और सॉइल डेंसिटी एज अल्फा रेडिएशन शुड बी अब्सॉर्ब बाय द पाइप। सो बीटा या गामा एमिटर होता है, उसमें से जब बीटा या गामा निकल रही होती हैं तो ऊपर पाइपलाइन के वो एक डिटेक्टर लेके चल रहे होते हैं, ठीक है? डिटेक्टर लेके चलना पड़ता है उन्हें लाजमी, मतलब ये जीएम ट्यूब वो लेकर चल रहे हैं, जहां पे रीडिंग बहुत ज्यादा आ गई वहां पे कहते हैं कि भाई नीचे लीकेज है। क्योंकि जब रीडिंग ज्यादा आने का मतलब है पाइप वहां से फटा हुआ है, डैमेज है, तो वहां से ज्यादा ऑयल बाहर आ रहा है, तो रेडिएशन भी ज्यादा आ रही है, तो रीडिंग ज्यादा होगी तो उनको पता लग जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो मेथड है वो है मॉडलिंग ऑयल रिजर्व्स मैथमेटिकली टू improve the oil recovery. अच्छा, water containing a radioactive tracer is injected into an oil reservoir at high pressure, forcing some of the oil out. Detectors at the production well monitor breakthroughing the radioactive isotope. इसमें ये खैर इतना हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस के साथ ये लिंक्ड नहीं है ये वाली चीज़, लेकिन फिर भी ये जहाँ से ऑयल वेल से ऑयल निकालते हैं तो उन्हें कैसे पता लगता है कि कितना ऑयल है? तो उसके लिए वो पहले वाटर पंप करते हैं, उस वाटर के अंदर रेडिएक्टिव सोर्स होता है, वो जब जमीन के अंदर जाता है ऑयल में मिक्स होता है, कुछ ऑयल को वो बाहर ले आता है और कुछ वाटर अंदर रह जाता है। जो वाटर अंदर रह जाता है वो फिर रेडिएशन बाहर निकाल रहा होता है और उसकी रेडिएशन की हाफ लाइफ जो है 12 ईयर्स तक होती है। तो वो जब वेल में से रेडिएशन निकलती जाती है, जितनी ज्यादा रेडिएशन निकलती है तो उनको पता होता है कि भाई यहाँ पे इतना ज्यादा ऑयल जो है वो मौजूद है, क्योंकि जो वाटर ऑयल में मिक्स हो गया है सिर्फ वही जो है वो रेडिएशन निकाल रहा होगा। ओके, द लास्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग द अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर बाय प्लांट्स। अपटेक का मतलब कि कोई प्लांट फर्टिलाइजर कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजर जमीन में डालते हैं उसके अंदर जो है वो एक रेडिएक्टिव सोर्स जो है वो मिक्स कर देते हैं, वो उसको प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और लेट्स से उसमें फास्फोरस वाली चीज होती है, फर्टिलाइजर कंटेनिंग फास्फोरस, बीटा एमिटर विद हाफ लाइफ ऑफ 14 डेज। तो फास्फोरस जो है उसके अंदर बीटा एमिटर होता है, जब प्लांट की रूट्स में वो डालते हैं फर्टिलाइजर, प्लांट की रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं और वो फास्फोरस जो है वो अंदर चला जाता है प्लांट के स्टेम में, लीव्स में, और वहां से वो फिर बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है। तो उसको स्कैन करके देखते हैं कि प्लांट के किस किस हिस्से से बीटा पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, उससे उन्हें उसकी इनटेक का पता लगता है कि ये प्लांट फास्फोरस कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो जिस तरह ह्यूमंस में हमारी बॉडी में भी तो प्रॉब्लम्स होती है ना, जिनको ब्लड एनीमिया होता है बच्चों को, वो क्या होता है कि उनके ब्लड सेल्स के अंदर आयरन की कमी होती है, तो वो जब ब्लड जा रहा होता है तो उनके सेल्स आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते। तो ये कैसे पता लगता है? ज़ाहिर इन चीज़ों के थ्रू ही पता लगता है, बॉडी खोल के अंदर से तो नहीं देखते ना, वो रेडिएशन अंदर रेडिएक्टिव ट्रेसर अंदर डालते हैं और फिर उसके बाद उनको ट्रेस बैक करते हैं और उनको पता लग जाता है कि भाई कहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही। ओके, लास्ट वन, हाँ ये जो मैं एग्जांपल बता रहा था वो आ गया, मॉनिटरिंग ऑफ अपटेक ऑफ आयोडीन बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, बहुत सारे हार्मोन्स ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। कुछ लोगों के थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आता है, वो फैल जाता है, ठीक है? ये हमारा नेक के अराउंड होता है। सो पेशेंट इज गिवन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम आयोडीन which contains a small quantity of radioactive iodine. तो आयोडीन चूंकि थायराइड की जो फेवरेट चीज होती है ना वो आयोडीन होती है, इसीलिए देखो ना आजकल कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करें, ठीक है? तो ये जो आयोडीन होता है थायराइड ग्लैंड इसको एब्जॉर्ब करता है, तो हम क्या करते हैं कि आयोडीन के साथ एक रेडियोएक्टिव आयोडीन मिक्स कर देते हैं, तो वो जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ब्लड में, तो वो जो थायराइड ग्लैंड है वो रेडियोएक्टिव आयोडीन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद वो बीटा एमिटर है, उसमें से बीटा रेडिएशन बाहर निकलती है, और वो बीटा रेडिएशन जब बाहर निकलती है तो रिसर्चर या जो मेडिकल वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसका इमेज बनाते हैं, इमेज बना के उनको पता लग जाता है कि भाई थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सही काम कर रहा है और कहाँ पे सही नहीं काम कर रहा। तो इस तरह इसका पता लगता है। द सेकंड लास्ट थिंग और द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज थिकनेस मॉनिटरिंग। आप अपने अगर कॉपी के पेज को देखो बेटा तो हर पेज की थिकनेस बहुत जबरदस्त आपको एक जैसी फील होती है। सेम ये चीज ग्लास शीट के साथ, मेटल शीट्स के साथ होती है, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ होती है। तो जितनी भी फॉइल्स हैं उनकी थिकनेस एक जैसे कैसे होती है, उसके लिए क्या करते हैं कि बीटा एमिटर सोर्स यूज करते हैं। लेट्स से यहाँ से ये एल्यूमिनियम फॉइल इस तरफ से आ रही है, ठीक है, और इस तरफ से सॉरी आ रही है, आपके राइट साइड की तरफ जा रही है। तो एक साइड पे रोलर्स हैं, एक साइड से देखो पीछे से मेटल आ रही है। रोलर क्लोज होते हैं या फार अपार्ट होते हैं तो उससे इस शीट की थिकनेस चेंज होती है। आगे क्या करते हैं, एक बीटा सोर्स रखते हैं जिसमें से बीटा पार्टिकल्स निकल के नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है? ये यहाँ से बीटा एमिटर आएगा और ये बीटा सोर्स बहुत सारे नीचे जा रहे होंगे, नीचे डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ रोलर के साथ होता है। ऑफ कोर्स बीच में कंट्रोल यूनिट भी होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इन्होंने सेट किया होता है कि यार हमें 1 मिलीमीटर की थिकनेस चाहिए। 1 मिलीमीटर पे डिटेक्टर को पता